ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਗਾਂਵ ਖਾਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਮਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4,000 ਏਕੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਓ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਮਸਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला की क्यों? हाँ जी, अभय सिंह चौटाला की सरकार क्यों देखना चाहते हो? बढ़िया आदमी है जी। कोई अपने खारिया हल्के के अंदर कोई काम करवाया? काम भी करा रहा है जी सारा। कोई एक काम गिना सकते हो? हाँ, वो बिजली घर महंगो कराएडो, नाली की नहर है भिंगी काटेड़ी है, अनाज मंडी भिंगी बनाएड़ी है, सारा काम भी करेगा। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। भाई जी, सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਰੀਆ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਹੁਤ ਜੀ, ਖਰਚੀ ਨਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਖੱਦਰਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਟੈਚੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? महंगाई तो देखो जी, चाहे कांग्रेस राज रही है चाहे बीजेपी सरकार रही है, देखो जी महंगाई तो चलनी है। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਚਟਾਲਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨੈਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ, ਵਿਹਲੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों देखना चाहोगे? बीजेपी बढ़िया है जी, गरीबा के लिए बहुत मान ले बढ़िया है। मान ले 100 राशन मिल रहा है, अच्छा रुपये मिल रहा है, अच्छा बैंक में किया हुआ है। मान ले मिस्त्री ले रहे, मान ले कापी बना दी, मान ले सारा काम मान ले बढ़िया है बीजेपी का। कितना पैसा का अपने खाते में? रुपये तो कोई बीजेपी के रहे मान ले। अनाज आ रहा है लगातार? हाँ, लगातार 5 किलो कड़क मिल जाए। और अपने हलके के अंदर कोई है कमी पेशी कोई काम करवाने की जो पिछले मौजूदा सरकार ने कोई काम ना किया हो? कोई ऐसा काम है अपने हलके के अंदर? ना जी, मेरे हिसाब से मुश्किल है। पूरा काम करवाया? ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई, इस बार किस की सरकार देखनी चाहोगे तुम विधान सभा के चुनाव? चौटाला की जी। चौटाला का कैंडिडेट कौन है बनेगा? चौटाला जी। मौजूदा सरकार ने कोई काम कराया अपने हल्के के अंदर? अजय तो देखे कौन जी। ठीक है भाई, ओके भाई जी। सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਡੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। अच्छा जी, नमस्कार जी। भाई जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਮਸਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ और इस बार ਤੁਸੀਂ किस ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, जैसे सरकार की बात तो ये है कि जैसे पीछे मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तो युवाओं को है जो अच्छी नौकरियां मिली थी, जो पढ़े लिखे मेहनती युवा थे उनको नौकरियां मिली थी। और जो किसान है उनको जैसे फसल अब की बार का ये जैसे पीछे 2-3 सालों में ख़राब भी हुई थी तो उन फसल का मुआवजा भी मिला है। किसान को भी उनका हक मिल रहा है, जैसे जो फसलें हैं MSP पर ख़रीद रहे हैं। और युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिले। जैसे पहले सिस्टम होता था जो नौकरियां हैं वो
सिर्फ पैसों से ही मिलती थी, या कोई पर्ची लेके जाता था नौकरी सिर्फ उसको ही मिलती थी। तो अब जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं ना, जो युवा लग रहे हैं, जो नौकरियों में जो युवा लग रहे हैं ना, वो गरीब घरों के और पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ना, वही युवा जैसे गवर्नमेंट जॉब पे, क्यों हर किसी का सपना होता है भी हम सरकारी नौकरी लगे। तो जो अब युवा मेहनत कर रहे हैं, और वो जो मेहनत करने वाले युवा है ना, वही सरकारी नौकरी लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। युवा खुश भी है इससे, पार्टी से, उनको भी मौका मिल रहा है अभी। एक युवाओं के अंदर कॉन्फिडेंस है भी हम भी नौकरी लग सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। पहले ये सिस्टम नहीं होता था, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद में आती है किसानों की। तो किसानों को क्या चाहिए, उनके फसलों के अच्छे दाम चाहिए। जैसे अभी जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा भी की है अभी, जैसे सभी फसलें हैं जो हरियाणा में, जो हरियाणा पहला राज्य है जो सभी फसलों का MSP पर खरीद करेगा। पहले भी जो खरीद है वो MSP पर होती आई है। तो किसान भी इस सरकार से बहुत खुश है, और युवा भी खुश है, और तरह तरह की जैसे जो हमारे कारीगर है, तो उनको भी समय समय पे अच्छी सुविधा दे रही है, लोन की सुविधा दे रही है। कोई बेरोजगारी हुआ है, अपना खुद का बिजनेस या खुद का कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो सरकार उसको लेके गंभीर है, और उसको एक बहुत ही कम ब्याज पे वो लोन पर उसको प्रोवाइड करवा रही है। तो मुझे नहीं लगता अभी कहीं कोई कमी रह गई है। चलो होता है, अभी पूरे इतने बड़े हरियाणा में कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती है, और बाकी अगर कुल मिला के देखा जाए तो हर वर्ग खुश है इससे। ਬਾਈ ਜੀ महंगाई ਤੇ बेरोजगारी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस नजरिए ਨਾਲ देखते थे? नहीं, महंगाई ऐसे जी, जैसे जैसे इनकम भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इनकम भी हमारी साथ के साथ बढ़ रही है। एक टाइम था जैसे इनकम के सोर्स कम थे, और इनकम का कोई वो इतना जैसे वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है वो भी कम हो रही है। तो इसमें महंगाई और ये दोनों साथ चलते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, कुछ खर्चे भी बढ़े। जैसे आजकल क्या है, युवाओं फ़ोन के है, हर चीज़ की जैसे वो एक्स्ट्रा खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जैसे आप घूम फिर लेते थे पैदल, आजकल क्या है, यहाँ से अगर 4 कदम भी जाना तो मोटरसाइकिल पे, उसमें क्या मोदी कर लेगा, क्या कौन क्या कर लेगा उस पर। तो इन आप ऐसे खर्चे आप रोक सकते हैं। जैसे कहीं जाना है तो आप पैदल जाके भी, बाइक लेके जाएंगे तो वहाँ जाके आएंगे तो 10-20 रुपये का पेट्रोल बढ़ेगा, तो वो बचत है वो हमारी। इस तरह करके अगर आप एक सिंपल और साधारण जीवन व्यतीत करें तो उसमें महंगाई का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अरे महंगाई में अगर बात की जाए, जैसे तो फसलों के रेट है तो वो भी अच्छे हुए हैं, अच्छे रेट मिले हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले है ना, जैसे किसान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी भी हर एकड़ पे 2000 रुपये देंगे। भी जैसे बारिश लेट हुई है तो इसमें 2000 रुपये अभी सारे किसानों के खाते में आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे किसान को बहुत अच्छी सहायता मिल गई है, सहयोग मिल गया है सरकार की तरफ से। और इस 10-15 दिन पहले अगर बात की जाए तो हमारे खुद के खाते में ना कम से कम 10-15 हज़ार 12-13 हज़ार रुपये किले के प्रति एकड़ के हिसाब से इसका फसल का बीमा आया। इससे पहले मुआवजा आया था, जैसे खारिया गांव है ये, तो इसमें 25,000 रुपये प्रति एकड़ का जो फसल का बीमा है वो आया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था जिसमें 4-5 रुपये बीमा मुआवजा आता था, तो आज अगर बीमे की मुआवजे की बात की जाए तो लाखों रुपये से कमाता ही नहीं किसी का। तो और मैं तो किसानों से भी बात होती है, हम खुद भी किसान हैं, तो सारे खुश हैं, ऐसी बात नहीं है भी कोई नाराज है। भी कुछ जैसे पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिविटी फैला रहे हैं अभी। बाकी बिल्कुल सारा संतुलन में, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी अब की बार भी 2024 में भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। जैसे परसों ही नायब सिंह सैनी ने कहा है भी जब तक युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा, जैसे 6 महीने आए हुए हैं लोकसभा पहले से ही इनको वो दिया था, तो नौकरियों के लेकर इतने गंभीर है वो, तो पूरी कोशिश करें। उन्होंने 6 महीने में सभी बच्चों के एग्ज़ाम करवा के उनका रिजल्ट तैयार पड़ा है। अगर ये कांग्रेस अगर वो रिजल्ट ना रोकती तो वो आज सारे लगभग 40 से 50 हज़ार युवाओं को नौकरी मिल जाती। कौशल हरियाणा की बात करें तो उसमें भी एक अच्छे खासे वर्ग को एक रोजगार मिला है, और रोजगार की गारंटी है भी, उसको लाइफ टाइम कोई नहीं हिला सकता। तो मुझे तो कमी लग नहीं रही कहीं भी, सारा सिस्टम सही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, और किसी प्रकार की गुंडागर्दी या वो भी सारा कुछ खत्म है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। केंद्र सरकार आएगी तो यहाँ तो चौटाले की, हम चौटाले को मानते हैं, चौटाले की आएगी। चौटाले ने बढ़िया काम कराया खारिया का अंदर। स्वरूपोत का चौटाले ने किया यहाँ पे तो काम। और कोई काम पेंडिंग पड़ा? मौजूदा जो सरकार बीजेपी की चल रही है
तो कुछ काम करवाया है? ऐसे सरकारी काम तो चलता ही रहता है, यहाँ अब अच्छा काम हो रहा है, दुकानें बन रही है, सभी अच्छा काम हो रहा है। मैं लगा हूँ यहाँ पे दुकानों में काम ये करता हूँ। दुकान किसकी है? पंचायत की दुकान है? पंचायत की दुकान है, वैसे सरकार पैसे तो सरकार ही दे रही है इसके, पंचायत के एक लिखे तो नहीं लगते। इस बार सरकार किसकी देखना चाहोगे? मैं तो यहाँ पे तो चौटाला की सरकार देखना चाहूँगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है जी। सारे ਨੂੰ ਵਿਕੂਗਾ सारे देखूंगा। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਨਾ ਭਾਈ ਆ वाह जी वाह। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਬਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਸੁਖੀ ਰਵੇ ਬਸ बीजेपी टिकट देगा इस बार चौधरी रणजीत सिंह ਨੂੰ? ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ ਵੀ ਹੈ कोई एक ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ भाई केड़ी सरकार देखना चाहोगे इस बार? देखो जी कौन सी आई फिर भी अपने राय दो तुसी। आए चाहे इनोले आए चाहे कांग्रेस आए दोनों में एक आनी चाहिए बढ़िया काम करा है अपने हल्के के अंदर। यही करते हैं इनोलो वाले ज़्यादा बीजेपी सरकार ने कराया जो मौजूदा सरकार है, ठीक है उनका भी काम बढ़िया काम करा है हल्के के अंदर। हाँ जी ठीक है काम अच्छा है ठीक है भाई, धन्यवाद। सही ने कंप्लीट ताऊ जी इस बार तुसी अपने हल्के के अंदर केड़ी सरकार देखनी चाहोगे? बीजेपी सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है। यहाँ मंत्री चौधरी रणजीत सिंह है, अच्छे विकास के कार्य करवाए हैं गाँव में। तो इस बार तुहानू उम्मीद है भी बीजेपी सरकार जी टिकट देगी चौधरी रणजीत सिंह नू? बिल्कुल मिलेगी, पक्का मिलेगी, बढ़िया आदमी है, टिकट मिलेगी जरूर। कोई एक काम गिना सकते हो जो अपने हल्के के अंदर चौधरी रणजीत सिंह ने करवाया हो? हमारे गांव से बहुत काम करवाए हैं। गौशाला में बहुत पैसा दिया है, सामुदायिक केंद्र बनवाया है, बाबा मंगलवार डेयरी पे करोड़ों रुपए लगवाए हैं। बस नाली की सफाई करवाना और सारे काम के लिए हर मौके पे 24 घंटे में मौजूद रहता है ये आदमी। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। बढ़िया काम करवाए हैं। ठीक है। और असली केड़ी सरकार देखनी चाहोगे? ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ कैंडिडेट किस ने देखना चाहोगे? ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ उम्मीद है इस बार कैंडिडेट सीट अपना टिकट देंगे रणजीत सिंह को? टिकट उम्मीद तो 100% है मिलूगी तो जीतेंगे। चौधरी रणजीत सिंह ने किन्ने काम कराया तेरे हल्के के अंदर? काम बहुत कराया जी हमारे गाँव में, तो सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया है। एक बाबा मोहनाथ का मंदिर है उसमें लगभग 1.5-2 करोड़ रुपये लगाए हैं। नाली का भी काम कराया है और दुख सुख में भी आते रहते हैं, हफ्ते में लगभग 2-3 बार गाँव में, जैसे भी ब्याह शादी हो मिलन सारा आदमी बढ़िया। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद। भाई जी इस बार विधान सभा ਦੇ ਚੁਣਾਵ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ बीजेपी ने? बीजेपी ने हल्का में तो काम कौन कराया भी, गरीबों का अंदर बहुत फायदा करिए जी। की फायदा कराया गरीबों खातर? गरीबों का अंदर ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया जी, बादलों कौन पड़ा गरीब आदमी ने। और दूसरी बात जी हाँ डी ग्रुप की भर्तियाँ निकाला है, जी हाँ होशियार बच्चा भी लागन लाग रहे। महंगाई कितने देख रहा है जी बीजेपी सरकार दे? हाँ जी, महंगाई किस नज़र ना देख रहा है जी? महंगाई तो है, महंगाई भी तो है, साथ में आकर प्रचार भी तो बढ़ाने लग रही है, सारा तनख्वाह बढ़ाने ला रही है, दिहाड़ी बढ़ाने ला रही है, सारा कुछ करने ला रही है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ओके जी। तो इस बार केड़ी सरकार देखना चाहोगे? भाई अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं ध्यान को नहीं चीज बीजेपी, कांग्रेस, अनेलो, आम आदमी, अपने सगड़ी एक सी है। बढ़िया मौजूदा सरकार ने बढ़िया काम कराया अपने हल्के के अंदर। हाँ काम तो बढ़िया कराया और ठीक था, धन्यवाद। भाई जी किसी सरकार देखना चाहोगे इस बार हरियाणा में? हरियाणा में जी सरकार तो मारो एरिया तो इनेलो देखनी चाहिए जी। अगर इनेलो सरकार आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्यों जी चौटाला साहब का है हमारा एरिया का है, बड़ो काम करे वहाँ एरिया में। मैं तो कांग्रेस इनेलो की सरकार देखनी चाहूँ। इनेलो ने कितने काम कराए अपने हल्के के अंदर? बहुत ही ज़्यादा काम कराया। जो बस स्टैंड है ना जितना आज सारी ज़मीन कोई आदमी ले गयो,
अगर बीन टाइम अगर अभय सिंह जी मदद ना करता तो अड्डा के स्कूल को रस्तों भी बंद हो जाता। हाँ, सारी बांगी मेहरबानी है। बिजली घर है, मंडी है और के अस्पताल है, बहुत काम करे जी। मौजूदा सरकार ने कोई काम करवाया? जी मौजूदा सरकार काम तो बहुत करे, हर एक पंचायत में पैसा है, काम बहुत ज्यादा भी हो। नौकरियां भी बच्चा आपकी योग्यता अनुसार लगन लग रही, खर्चे पर्चे और काम बंद हो गए। ठीक है भाई, धन्यवाद। भैया आप कैसे सरकार देखना चाहोगे? मैं तो जी सरकार देखनी चाहूँ कांग्रेस की। कांग्रेस की बढ़िया सरकार है। और कैंडिडेट कौन देखना चाहोगे, कौन सा? कैंडिडेट अभी तो नाम ही कौन कटे हुए। कैंडिडेट तो ये है, अब अगर 100 स्टार्स वाला क्या वो बनाओ बीता वोट गिर रहे हैं तो कांग्रेस के वोट आप भी आ जाएगा। कांग्रेस ने काम बढ़िया करवाया पिछले प्लान में? बहुत बढ़िया करो। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, मैं आपको कैंडिडेट किसको देखना चाहोगे? अर्जुन चौटाला श्योर जीत गया जी, कोई नहीं रोक सकता उसको। पूरा कॉन्फिडेंस है? एकदम 100 से ऊपर % कॉन्फिडेंस है, अर्जुन चौटाला जीत गया। अब हमें सिर्फ सीट चाहिए 45, क्यों है तो हमने जीत ली 45 और चाहिए 46 आती है हमारी सरकार पक्की। ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक यू।